गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર જોયું કે કહાની ન્યાય જે છે એમાં બે મિત્રોની વાત છે કે પહેલાંના સમયની અંદર રાજધાની બગદાદના ગામની વાત છે કે એક મિત્ર બીજા મિત્રને ત્યાં એની સિક્કા જે છે એ મૂકી આવે છે અને સિક્કા કેવી રીતે મૂકવા તો એને એક યુક્તિ સૂઝે છે કે તેલની અંદર એણે શું મૂકી દીધું, એના સોના મોહરના સિક્કા એ મૂકી દીધા પછી બીજા મિત્રને એટલે કે જેની ઘરે તેલ મૂકેલું હતું એની અંદર સિક્કા નાખેલા હતા એ મિત્રને ત્યાં પ્રસંગ હોય છે, એટલે વાજિદને ત્યાં પ્રસંગ હોય છે અને વાજિદના ઘરે પ્રસંગ હોવાથી શું ખલાસ થઈ ગયું હતું, તેલ ખલાસ થઈ ગયું હતું। એની પત્નીને વિચાર આવે છે કે તેલ આપણા પ્રસંગમાં ખલાસ થઈ ગયું છે તો આપણે ત્યાં જે મૂકેલું તેલ છે એ આપણે લઈ આવીએ અને એની અંદર આપણે અત્યારે ઉપયોગ કરી એટલું લઈ અને બીજું તેલ પછીથી મૂકી દઈશું। અને બને છે પણ એવું કે એ તેલ લઈની સાથે એની અંદર સિક્કા જોતા એ તેલ લેવા જાય છે અને સિક્કાનો અવાજ સંભળાય છે। સંભળાવાની સાથે એ એના જે સિક્કા એટલે કે સોના મોહર હતી એ શું કરે છે, તિજોરીમાં મૂકી દે છે એના પત્નીને આપી અને પછી એ તેલ બીજે દિવસે આવી અને એ તેલનું કામ પૂરું થઈ જાય પછી બીજે દિવસે વાજિદ શું કરે છે, એનું તેલ મૂકી દે છે। સિક્કા લઈ લીધા હોય છે અને તેલ પણ લઈ લીધું હોય છે પણ બીજે દિવસે તેલ શું કરે છે, અંદર વળી પાછું મૂકી દે છે। ત્યાં સુધી આપણે ભણ્યા। ગુજરાતીમાં એટલા માટે અનુવાદ કર્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે હિન્દી સાથે હિન્દી સમજીએ છીએ કે આખી વાત તમને મેં ગુજરાતીમાં પણ એકવાર કહી दी थी। जब वाजिद के यहाँ पर तेल की ज़रूरत पड़ी तब वाजिद ने तहखाने में जाकर तेल ले लिया और तेल के साथ साथ सोना मोहर भी ले ली। जो खड़ा था वह सीलबंद था, सील तोड़कर सिक्का ले लिया और तेल भी ले लिया। बाद सिक्का अपनी तिजोरी में रख दिया। वहाँ तक हमने अभ्यास किया था। कुछ दिन बाद जब ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आता है तब उसने सामान रखकर सीधा ही वह वाजिद के घर आ जाता है और अपनी यात्रा करने के लिए वो गया था, वो यात्रा की सभी बात आकर वाजिद को बताता है। बात फिर उसको वह इसलिए वहाँ पर आया था क्योंकि उसके सोना मोहर तेल के अंदर रखे थे, इसलिए वह सीधा पहला घर पर सामान रख कर क्या करने के लिए आया, सोना मोहर लेने के लिए आए। तो उसने सारी बात बताई। बाद क्या हुआ, फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। तहखाने से उसका तेल का घड़ा ले आया और तेल का घड़ा लेकर वह कहाँ पर चला गया, ख्वाजा घर पर चला गया। अब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पैरों तर ज़मीन खिसक जाना यानी कि उसको तो आघात लगा कि अरे मैंने तो विश्वास के साथ उसके घर पर तेल में सोना मोहर रखी थी, मैंने तो विश्वास के साथ मेरे मित्र के वहाँ पर ये सोना मोहर रखी थी। अरे अब क्या होगा, इसमें तो सोना मोहर नहीं है। वह सिर पकड़कर बैठ गया यानी कि वह निराश हो गया क्योंकि घड़े में एक भी सोना मोहर नहीं थी, इसलिए वह निराश हो गया। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। केवुं थयुं विद्यार्थी मित्रों
કે એણે એના મિત્રને ત્યાં વિશ્વાસ સાથે, ક્યારેય કોઈનો વિશ્વાસઘાત કરાય નહીં. એણે વાજિદના ઘરે તેલની અંદર શું મૂકી દીધું હતું? સોના મોહરો મૂકી દીધી હતી. એની પાસે જે જમા પૂંજી એટલે કે એની પાસે જે વધેલા સોના મોહર હતા, એની પાસે જે વધારાની પડી હતી, એને જે કામની જેટલા એને ઉપયોગમાં આવે એટલા પૈસા હતા એટલો લઈ ગયો. અને બીજા પૈસા એણે શું કર્યા? બીજા સોના મોહર એણે શું કર્યા? જમા પૂંજી એટલે કે એને રાખી મૂકવા માટે શું કર્યા? તેલની અંદર મૂકી દીધા. એટલે કદાચ કોઈ ચોર આવે કે કોઈ લઈ જાય એવું બને નહીં, કારણ કે તેલના ડબ્બામાં, તેલના ઘડામાં હોય એવું તો બને નહીં. પણ આ તો બન્યું. પણ એવું વાજિદને તો ખબર જ નહોતી કે એની અંદર સોના મોહર છે, પણ ખરેખર એને ત્યાં પ્રસંગમાં તેલ પકવાન બનાવતા બનાવતા તેલ ખલાસ થઈ ગયું. એટલે એણે વિચાર આવ્યો કે મિત્ર મારો જે છે ખ્વાજા, એણે શું કર્યું છે? તેલ મારા અંદર મૂકેલું છે, એ તેલનો ઉપયોગ કરી લઉં હું. પણ એને ખબર નહોતી કે આની અંદર સોના મોહરો છે. પણ તેલ જ્યાં કાઢવા જાય છે ત્યાં સોના મોહરનો आवाज़ आवे छे. उसे आवाज़ सुनते ही उसने क्या किया? उसका सोना मोहर था वो तिजोरी में रख दिया और तेल का उपयोग कर दिया. इतने सोना मोहर कोई भी व्यक्ति देखे तो उसकी दानत बिगड़ जाती है, यानी कि उसकी तो मति चल बसी, उसकी तो बुद्धि चल बसी कि कोई बात नहीं, उसको क्या पता चल जाएगा, उसमें से सोना मोहर में ले लूँ था. ले भी लिया. बाद में क्या किया उसने? उसमें बाजार में जाकर नया तेल लाकर इस घड़े में डाल दिया. यह सब घटना पूरी हो गई. बाद ऐसा हुआ, ख्वाजा जो है वह मक्का मदीना की यात्रा करके घर वापस आता है. घर वापस आते ही सबसे पहले उसने अपना सामान घर पर रखा. बाद में वह वाजिद के घर गया. उसने यात्रा में सारी बात बताई. सारी बात बता के फिर वह तहखाने में गया और तेल का घड़ा लेकर घर पर गया. घर पे जाते ही उसमें क्या हुआ? तेल निकला, पर सोना मोहर निकली नहीं. सोना मोहर न निकलने की वजह से वह दुखी हो गया. मन ही मन सोचने लगा कि अरे अब क्या किया जाए, क्योंकि उसके मित्र को पता नहीं था कि इसमें सोना मोहर है. उसने ख्वाजा ने वाजिद को बताया भी नहीं था कि इसमें मैंने सोना मोहर रखी है. इसलिए उसको विचार आता है कि मैंने तो बताया भी नहीं था और मैं किसको कहूँ कि इसमें सोना मोहर थी, अब मैं क्या करूँ. इस विषय के बारे में वह सोचने लगता है. वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया. उल्टे पांव जाना यानी कि वह फौरन जाता है. वह उल्टे पांव जाना. उल्टे पांव जाना यानी कि फौरन आना. फौरन जाना यानी कि तुरंत पीछे जाना. वाजिद के घर गया, वो तो फौरन तुरंत ही वाजिद के घर जाता है और अपनी मोहरें मांगने लगा. वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रखकर गए थे. मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया. मैं कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहरें थी. कैसी बात करता है वाजिद. वह तो ख्वाजा तो तुरंत ही वाजिद के घर जाता है और जाकर कहता है कि मेरी इसमें मोहरें नहीं है, मैंने यहाँ पर मोहरें रखी थी. तो वाजिद क्या कहता है कि अरे तूने तो यह सीलबंद तेल का घड़ा आपको जिस स्थान में रखा था वही स्थान से आपको मिला है. जिस स्थान से आप रख कर गए थे वहाँ
जहाँ भी आपने रखा था, जो घड़ा वह घड़ा आपको वहीं से मिला है। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहरें थी? मैं किस तरह मान लूँ कि वहाँ पर घड़े में सोने की मोहरें थी? मैंने तो वही तुमने जहाँ पर घड़ा रखा था उस घड़े को तो मैंने छुआ भी नहीं, वहाँ तो मैं गया भी नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि इसमें सोने की मोहरें थी, तो मैं किस तरह इसमें से ले लूँ? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी होनी यानी कि वाद विवाद होना, कहासुनी होना, कहासुनी होना यानी कि वाद विवाद होना। कहासुनी होना यानी कि वाद विवाद होना। दोनों मित्र में वाद विवाद होने लगे कि मैंने तो वहाँ पर रखी थी, वह कि मैंने ली नहीं, मैंने तो देखा नहीं, तो मैं क्यों इसमें से लूँ? मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो छुआ भी नहीं। ऐसी बात को लेकर दोनों मित्र यानी कि वाजिद और ख्वाजा दोनों में आपस में बात बढ़ गई, वाद विवाद होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के जो लोग थे वह इकट्ठे हो गए, यानी कि सभी लोग ये देखने के लिए आ गए। दोनों की वाद विवाद की बात सुनकर उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। क्या कहा? दोनों की बात का झगड़ा जो है वह बहुत बढ़ गया, इसलिए पास वाले लोग ने कहा कि आप ऐसा करो, ख्वाजा से कहा कि आप ऐसा करो कि आप काजी की अदालत में जाइए। काजी यानी कि न्यायाधीश। आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ऐसा कीजिए, आप दोनों आपस में वाद विवाद मत कीजिए। आप काजी की यानी कि न्यायाधीश के पास जाइए, उसके पास आपका जो झगड़ा हुआ है, दोनों के बीच में जो वाद विवाद हुआ है वो ही मिटा सकता है, दूसरा कोई किसी का काम नहीं है। आपके झगड़े को वो ही मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। पक्के सबूत यानी कि जो दोनों के बीच यानी कि जो हकीकत है उसके बीच का कोई सबूत होना, उसके बीच में कोई किसी बात का सिद्ध करने का प्रमाण होना, कोई किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण होना, उसे क्या कहा जाता है? सबूत। यानी कि पक्के सबूत दोनों के बीच में कोई नहीं है, इसलिए वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। निराश होकर यानी कि दुखी होकर वहाँ से वह लौट गए। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। अपील यानी कि निवेदन किया। अपील यानी कि निवेदन। खलीफा यानी कि पैगंबर का उत्तराधिकारी। पैगंबर यानी कि मुस्लिम लोग में जो भगवान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पैगंबर। तो वह संत महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा होते, उसे पैगंबर कहा जाता है। खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार की। जो बात की निवेदन हुआ, जो दोनों के बीच जो वाद विवाद था, उसका वही बात वहाँ जाकर किसको बताया? खलीफा को बताया, और उसने दोनों की बात सुनी और न्याय को यानी कि इस अपील को जो निवेदन किया था वह स्वीकार कर लिया। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफा ने
सारे मामले यानी कि दोनों की बात सुन ली, वाजिद की और ख्वाजा की दोनों की बात सुनकर उसने दोनों की बात पर क्या किया, विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। यानी कि दोनों को बताया कि मुझे आपकी दोनों का जो वाद विवाद हुआ है, दोनों के बीच जो बात बनी है उसके लिए मुझे समय चाहिए, इसलिए उसने समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। सुनवाई यानी कि दोनों बीच जो वाद विवाद हुआ था उसका न्याय दिलाने की बात, यानी कि सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। प्रख्यात यानी कि दोनों के बीच जो प्रश्न हुए थे वो प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि यह बात तो कहाँ तक पहुँची, न्यायाधीश तक पहुँची, न्याय तक पहुँची, न्यायालय में ये बात गई। इसलिए इस वाजिद और ख्वाजा का जो प्रश्न था, वाद विवाद था, यही बात तो बहुत प्रख्यात हो गई, यानी कि बहुत प्रसिद्ध हो गई। प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध। दोनों का किस्सा, यह जो बात बनी हुई थी वह प्रसिद्ध हो गई। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। भेष यानी कि वेश, पहनावा, भेष यानी कि वेश और पहनावा यानी कि अलग अलग प्रकार के जो कपड़े पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, वेश कहा जाता है, पहनावा कहा जाता है। पहनावा यानी कि वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा यानी कि जो पैगंबर का उत्तराधिकारी होता है, जो संत महात्मा होता है बड़ा, वह एक दिन क्या हुआ, वह अपने कपड़े अलग प्रकार के पहनकर, जो न्यायालय में पहनते वो नहीं, दूसरे कपड़े पहनकर, दूसरे वेश पहनकर वह क्या करने लगा, वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़के को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। न्यायालय का खेल, वह जब खलीफा एक दिन गांव में घूम रहे थे तब उसने बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, उसी तरह यहाँ जहाँ खलीफा घूमने निकला था वही जगह पर कई बच्चे न्यायालय के क्या खेलते थे, खेल खेलते थे। कुछ लड़कों न्यायालय का खेल खेलते थे। हम टीचर खेलते हैं ना, कई बार हम ऐसा खेल खेलते हैं, चलो आज हम टीचर खेलते हैं, उसी तरह इस बच्चे ने न्यायालय का खेल खेलने के लिए वह सब इकट्ठे हुए थे। इसलिए सब बच्चे जो थे वह न्यायालय का क्या करते थे, खेल खेलते थे। उसने यह देख लिया, वह छिप कर उनका खेल देखने लगे। उसने क्या किया, खलीफा ने कि जिस जगह पर बच्चे खेल खेलते थे वही जगह पर छिप कर उसने ये बच्चा जहाँ पर बच्चा खेल खेलते थे उस जगह पर छिपकर सारा खेल, बच्चा आपस में खेलते थे, बस छिपकर सारा खेल किसने देखा, खलीफा ने देखा। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह समझदार है। उसने क्या देखा कि जो बच्चा न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है, न्याय करना यानी कि वह जिस तरह सच्ची बात बता रहा है, सच्चाई बता रहा है। खेलते खेलते, विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखना कि बच्चों सब खेल खेलते थे। खेल खेलते वक्त जो आपस में बच्चों बात कर रहे थे, इसकी बात है, वह बात खलीफा ने छिपकर देख ली और देखकर उसने यह देखा कि जो बच्चा न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है, यानी कि जो न्याय देने वाला व्यक्ति है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ सबकी सुनौनी सुनता है, बात सुनता है और बात सुनकर वह बच्चे के साथ बात करता है, न्याय देता है, वह बड़ा समझदार व्यक्ति है। और वह जिस तरह न्याय कर रहा है वह बच्चा उसको समझदार लगा कि वह बच्चा बहुत बढ़िया न्याय कर रहा है, इसलिए वह न्यायाधीश जो बना है वह बच्चा बहुत समझदार है, न्याय कर रहा है,
बिल्कुल ठीक है। यह बच्चे जो खेल खेलते थे वह खेल छिप छिप कर उसने देखा। देखते ही उसको ऐसा लगता, ये सब बात उसने खलीफा ने शांति से सुनी और देखी। जो बातें हो रही थी उसमें जो न्यायाधीश बना था लड़का, वह लड़का न्यायाधीश बना था, वो अच्छी तरह से बात को सुनता था। सुनकर वह ठीक तरह से क्या देता था, न्याय देता था। वही बात उसने खलीफा ने क्या की, शांति से, बिल्कुल शांति से यह बात सुनी और वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक है। उसको ऐसा लगा खलीफा ने कि यह इतना छोटा बच्चा जो न्याय की बातें कर रहा है वह बहुत बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने इस लड़के को अपने पास बुलाया। यह बात सब पहले सुन ली, खलीफा ने देख ली। बाद में उन्हें क्या किया, बाद में जो बच्चा न्यायाधीश बना था, यानी कि न्याय की बातें करने वाला न्यायाधीश, એટલે सच्चाई और अच्छाई, जो सच्ची बात है वह सुनकर, दोनों की बात सुनकर इसमें जो सच्ची बात है वह सच्ची बात वह बताना, उसे क्या कहा जाता है, न्यायाधीश करना। अच्छी बात नहीं बतानी है, सच्ची बात बतानी है। सच्ची बात जो लगती है, न्याय की बात लगती है, वह बताने की है। सच्ची बतानी है, अच्छी नहीं कि अच्छी किसको लगती है, मैं उसको ऐसा कहूँगा तो बुरा लगेगा, ऐसी बात नहीं। पर दोनों की बात में किस बात में सच्चाई है यह बताना है। तो वही बात वो जो लड़का न्यायाधीश बना था वो अच्छी तरह से न्याय के साथ वह रजू करता हुआ दिखाई दिया। वह बिल्कुल जो बताता था वह बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सच था और न्याय के साथ यह बात बताता था। इसलिए उन्होंने इस लड़के को अपने पास बुलाया और उसने नाम पूछा। किसने नाम पूछा, खलीफा ने। किसका नाम पूछा, तो जो लड़का न्यायाधीश बना था, न्यायालय का खेल खेलते थे बच्चे, इसमें जो लड़का न्यायाधीश बना था उस लड़के को बुलाया और उसको बुलाते ही उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। क्या बताया खलीफा ने कि मैंने तुम्हारा पूरा खेल देखा है, तुम अच्छी तरह से जो खेल सभी बच्चे खेलते थे वह अच्छी तरह से खेल खेलते थे और आप न्यायाधीश बने थे वो भी मुझे पता है, मैंने पूरा खेल देखा है। तुम तो बहुत समझदार हो। एक बात करो, कल मेरे दरबार में आप आना, कल हमारे दरबार में आप ज़रूर आना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि कभी किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। कोई भी झूठी बात एक न एक दिन तो सामने आती ही है। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे का अभ्यास हम कल करेंगे। नमस्ते।